हेलो। 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 जो मेरा ये अनम्यूट जो मैंने खुद म्यूट किया होता है अपना, उनकी मर्जी में माइक खोलने। प्लीज प्लीज प्लीज। हेलो। हेलो। आर यू लिसनिंग प्लीज लेडीज एंड जेंटलमैन? एक्सक्यूज मी, आप लोग मुझे सुन रहे हैं? यस सर, अब आवाज आ रही है आपकी। म्यूट हुआ हुआ चलिए, था हमारा। कैसे हैं आप? जी जी, कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है? सर, आप सुनाएं। ठीक हैं? जी शुक्र है अल्लाह का। आप सुनाएं सर, कैसे हैं? बस फाइन। सॉरी, ड्यू टू द internet interruption, so we won't be able to connect on time. So anyhow, we just start, ladies and gentlemen. The slides that I have made, I have emailed you, or rather mean that WhatsApp have been sent, as well as this is our topic. And the this topic is competitive environment analysis. Naturally, the environment which one firm have to face. So we need to analyze it, finding the strength, weaknesses, opportunities, and threats. So this would be our basic purpose. So now, a firm's external, as we know that environment is external and internal, and a firm's external environment is broken down into three parts. It's general, it's industry, it's a competitor environment. So a firm's strategic actions are influenced by the condition in all three parts. Mean कि एक फर्म जो है उसको इम्पैक्ट करते हैं उसके कंपेटिटर, उसकी इंडस्ट्री और उसके जनरल इन्वायरमेंट। हम आगे चल के अभी शो भी करते हैं विद रिस्पेक्ट टू दिस वन।
So in fact the macro or micro environment भी कहते हैं, so far as this is concerned, the general environment dimension in the broader society that influence an industry and the firm within it, we may call PESTEL basically, PESTEL. So like a political, economic, social, technological, environmental and legal environment. This is what it's the industry environment, a set of factors that directly influence a firm and its competitive action and responses. And there is a competitor environment. अच्छा अब देखिए इनफैक्ट जो इसके अंदर मैंने आप लोगों से थोड़ा सा व्हाट डज इट मीन बाय इंडस्ट्री, आप किसको कहते हो प्लीज? सेम कैटेगरी का बिजनेस जी और ग्रुप होगा सॉरी सर, सेम कैटेगरी ऑफ बिजनेस के लिए जो एक सबका एक ग्रुप होगा वो इंडस्ट्री होगा। नहीं दोबारा बताइए, आवाज नहीं क्लियर आ रही जी प्लीज। सर सेम कैटेगरी का जो बिजनेस है उससे हम इंडस्ट्री कह सकते हैं। जैसे सीमेंट है तो सीमेंट अगर जितने भी बनाने वाली फैक्ट्रीज हैं सबकी एक इंडस्ट्री होगी, जिस तरह टेक्सटाइल इंडस्ट्री। एग्जैक्टली द सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ फर्म प्रोड्यूसिंग सिमिलर प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड इंडस्ट्री। ठीक है जी, फाइन, बिल्कुल ठीक आपने बताया। अच्छा अब देखिए, अब थोड़ा सा अगर हम देखें तो दिस इज एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में ये कंपेटिटर एनवायरनमेंट है, ये इंडस्ट्री एनवायरनमेंट है, और ये ऊपर जो है दिस इज आर सोसाइटियल और दिस इज जनरल एनवायरनमेंट विच मे इन्वॉल्व फिजिकल, सोशियो कल्चरल, ग्लोबल, टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल, लीगल, डेमोग्राफिक टाइप ऑफ फार्मिंग एनवायरनमेंट। तो वी डू नीड टू कंडक्ट दी लाइक, तो दिस इज व्हाट, इसके नीचे एक फर्म है, फर्म may impact by competitors, may be impacted by industry, so as well as by the general environment. So this is the like now external environment of firms. External environment creates opportunities and threats. So naturally the opportunities are the opportunities for the business to enter other global market that may be called the opportunities like. और threats क्या है? The possibility that additional regulations in its market will reduce opportunities for the business purpose to extract oil and gas. So बहरहाल you know, once the environment is changed, this change of environment may cause the creating opportunities, or it may be causing threats. Simple difference may be called opportunities are such factor which may be giving the environment to grow and to further improve the businesses, उसको हम opportunities कहते हैं। और ऐसी कोई भी चीज़ जो आपके environment को में से जो उसको आपकी business के ऊपर negative impact छोड़ेगी, उसको हम नाम कहते हैं threats are. तो बहरहाल collectively opportunities and threats affects a firm's strategic actions. तो नेचुरली दिस इज, और दूसरी बात है कि ये आपका एक एंगल होगा कि यू वुड एनालाइज कि वेदर देयर इज अ पॉजिटिव इम्पैक्ट और देयर इज अ नेगेटिव इम्पैक्ट माय डियर। एनी हाउ दिस वुड बी द लाइक। नाउ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में हम जो चीज़ है वो होती है कि हमने मैचिंग करनी है, और ये मैचिंग में तीन चीज़ें यहाँ बताने की कोशिश हो रही है। वन इज एक्सटर्नल एनवायरनमेंट अंडरस्टैंडिंग, इंटरनल एनवायरनमेंट नॉलेज, और विजन मिशन स्ट्रैटेजीज को। तो देखा हम इसको हम देखते हैं कि अकॉर्डिंग टू विजन, मिशन, इंटरनल एनवायरनमेंट और एक्सटर्नल। तो प्लीज कीप इन माइंड एक टर्म जो एसएम के अंदर यूज हो सकती है उसे कहते हैं स्ट्रेटेजिक फिट। और ये फिट का वर्ड जो है वो बहुत जगहों के ऊपर यूज होता है एसएम में। तो आई थिंक स्ट्रेटेजिक फिट ये भी होता है कि वेदर योर स्ट्रेंथ इंटरनल एनवायरनमेंट हाउ मच इट इज मैचिंग टू योर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, ये फिट होता है ना। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे एक ये सर्कल लगाऊं अपॉर्चुनिटीज का, और इसके ऊपर ये सर्कल लगाऊं स्ट्रेंथ का, तो यू नो आप क्या वो एरिया जो ओवरलैप करेगा दो सर्कल को, वो है आपका फिट। मैं फॉर एग्जांपल एक जगह पे आपकी स्ट्रेंथ है लेकिन अपॉर्चुनिटीज नहीं है, तो यू कैन नॉट अवेल सच अपॉर्चुनिटीज, बट यू हैव अ गुड रिसोर्सेज, स्ट्रेंथ इज देयर। तो
इसी तरह आपके पास माइट बी यू मे हैव अपॉर्चुनिटी बट देयर इज नो स्ट्रेंथ, तो दैट्स व्हाई तो कंपनीज बेसिकली कोशिश करती है अपने इंटरनल इन्वायरमेंट को मैच करने के लिए विद द एक्सटर्नल, और वो एरिया जहां आपकी स्ट्रेंथ और आपकी अपॉर्चुनिटीज आपस में मैच कर जाएं, वो आपका सबसे अच्छा एरिया होता है, उसको स्ट्रेटेजिक फिट कहते हैं। तो स्ट्रेटेजिक fit mean how much the company's strength are matching with the opportunities of the business. Like, so this is the point that we have to now, you know, अभी हमने ये मॉडल आप लोगों को शो किया था, ये वो जो चीज़ है, दिस इज द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, और इसमें ये वाला जो पोर्शन है वो हम डिस्क्राइब करने जा रहे हैं, द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, जनरल एलिमेंट्स, segments and elements, so the demographic segment. So I'm sure like the demographic segment is related to all feature characteristics of the population, is basically called the demographic site. So this is the the feature. So demographic is all the vital data related to the population of the country is called basically demographic segment. और इसमें किसी भी मुल्क में हमें देखना होगा कि पॉपुलेशन साइज, एज स्ट्रक्चर, जियोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन कैसी है, एथनिक मिक्स क्या है, और उसकी इनकम डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह कितनी होती है। अच्छा, यहाँ पे मैं एडिशनली एक टर्म एक इस्तेमाल करना चाहूँगा, मार्केटिंग के अंदर हो सकता है आप लोगों ने, डू यू नो अबाउट बेबी बूमर, जनरेशन एक्स, जनरेशन वाई? बेबी बूमर्स तो एक खास पीरियड था जब मेरा ख्याल वार के बाद वाले जी, सर, ये इसके बारे में सुना होगा लेकिन पूरा अच्छी तरह याद नहीं है बेबी बूमर्स के बारे में। ये वार के बाद कुछ मतलब ना ये पैदा होने वाले, किसके बाद पैदा होने वाले? जंग के बाद, वार के बाद। जी, वार, जंग, जंग के बाद वो कौन पैदा होते हैं? इस तरह से कि उन्होंने बूम किया था ना इस बिजनेस। बेटा जी, कौन सी वॉर के बाद? ये 20th सेंचुरी के मेरे ख्याल बात है। नहीं, मतलब इससे मतलब क्या है कि किसको आप कहेंगे कि ये बेबी बूमर्स हैं? आप एक्सप्लेन कर दें इसका तो ज़्यादा बेहतर होगा। हाँ जी, अदर स्टूडेंट्स प्लीज। आज कराची से लोग लिंक्ड हैं जी यहाँ पे इस वक्त? जी, अजीम प्लीज, अजीम प्लीज। Excuse me. Anybody is from Islamabad? Excuse me. सर, काफी लोगों के माइक म्यूट थे, अब अनम्यूट हो रहे हैं। मैं पूछना चाह रहा हूँ। 1950s की बात होगी मेरा ख्याल है। सर आवाज आ रही है? जी जी, एक्चुअली मैंने पहला एक सवाल तो ये किया है कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर लिंक्ड फ्रॉम कराची एंड फ्रॉम इस्लामाबाद। कोई जो लोग अगर हैं तो कराची से लोग हैं जो इस वक्त लिंक्ड? Yes, sir. I'm from Karachi. Hello. ओके बेटा, आप लोग की पार्टिसिपेशन नहीं नजर आ रही कुछ, मतलब यू पीपल आर नॉट पार्टिसिपेटिंग फ्रॉम कराची। इस्लामाबाद से भी लोग हैं जी? यस सर। कराची से सिर्फ मैं ही हूँ, और आई हैव माइक के इश्यूज एवरी टाइम आई लॉग इन, तो मेरी माइक अनम्यूट ही नहीं होती। अच्छा, ओके, मेरा ख्याल है उसका अगर कोई प्रॉब्लम हो तो यहाँ से भी इन्होंने मुझे बताया था कि जो होस्ट है वो भी उसको अनम्यूट कर सकते हैं, तो यू आर सपोज टू रेज योर हैंड, द कैंडिडेट फ्रॉम कराची। Sir, I've tried that. I've tried that. I've also sent you on questions पे मैंने आपको स्टेटमेंट भेजी, पर no response to that also. तो ओके, अब I would, may I know your name please? Uzma Khodo. Uzma, do you know that what is baby boomers and generation X, generation Y?
Sir, I have a rough idea about baby boomers जो after Second World War काफी population में एकदम से increase आया था, the birth rate like वो बहुत ज़्यादा increase हो गया था, तो वो the kids that were born after Second World War, I think उनको baby boomers कहते हैं. उसके अलावा boomers are the people जो 80s में पैदा हुए तो और pre-80s तो. नहीं, सुनिए सुनिए, थोड़ा सा इस तरह है, ये सब लोग सुनिएगा। मार्केटिंग के अंदर ये टर्म यूज होती है यूरोप में और अमेरिका में। बेबी बूमर्स हम उनको कहते हैं दोज हु आर इन द एज ब्रैकेट बोर्न इन 1945 टू ऑनवर्ड 1964 के अंदर जो पैदा होने वाले बच्चे हैं उनको बेबी बूमर्स कहा जाता है। तो ये बेसिकली एज स्ट्रक्चर वाइज ये बेसिकली है। और फिर उसके बाद जो 66, 65 से ऑनवर्ड जो है वो 76 तक के जो बच्चे पैदा हुए हैं उनको जनरेशन एक्स, फिर इस तरह उसके बाद वाई कहा जाता है, फिर जनरेशन जी है और फिर जनरेशन अल्फा। और बल्कि जो 45 बेबी बूमर से पहले वाले जो हैं बच्चे या उस एज ब्रैकेट में लोग, उनको साइलेंट जनरेशन के नाम से कहा जाता है। माई पॉइंट वाज सिंपल, just to talk with you people, that was the demographic segment is also important one to know, because once the demography of any country basically give you a certain insight and understanding and variability in terms of population, age structure wise, because in a country if young people, adult peoples are more, percentage is more, just like last time PTI basically have focused more on the youth basically। तो ये उन्होंने बेसिकली एज स्ट्रक्चर से उन्होंने उसको अपने लिए पोलिटिसाइज करने की कोशिश की ताकि जो यूथ है हमें पसंद करेगी। और हम इस हवाले से सेम ज्योग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन, एथनिक मिक्स, लाइकवाइज आई मीन हाउ मैनी इन एनी कंट्री ethnicity, I mean groups are standing in terms of like the Balochi, Punjabi and so on, just like as Hindu, Sikh and so on. ये भी एक कंट्रीब्यूट करता है। और इनकम डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से जी प्लीज एक्सक्यूज मी जी। नाउ दैट देयर इज apart from this one, so there is environment, the economic environment. So this environment refers to the nature and direction of economy in which a firm competes or many may compete. Firms generally seek to compete in relatively stable economies with strong growth potential. With globalization and the interconnectedness of nations, firms must scan, monitor, forecast and assess the health of their host nation and the health of the economies outside their host nation. तो ज़ाहिरी बात है आपको अपनी जो होस्ट नेशन है, लाइक पाकिस्तान अगर हम कहें कि अगर हमारी इंडस्ट्री अगर कुछ सोच रही है तो दे मस्ट सी आउटसाइड कि व्हाट इज गोइंग टू बी हैपनिंग। तो दिस इज व्हाट द इकोनॉमिक सेगमेंट के अंदर हम जो नॉर्मली चीज़ों को देखते हैं वो इन्फ्लेशन रेट्स देखते हैं, इंटरेस्ट रेट देखते हैं, ट्रेड डेफिसिट और सरप्लसेस की बात करते हैं, बजट डेफिसिट और सरप्लसेस की बात करते हैं, पर्सनल सेविंग रेट्स हैं, बिजनेस सेविंग्स रेट्स हैं और ग्रॉस डोमेस्टिक। तो ये हमारा वो जीडीपी, जीएनपी वगैरह के हवाले के साथ है, ये इन्फ्लेशन है। अच्छा, मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगा कि एक टर्म इंटरेस्ट रेट के हवाले से जो होता है हमारे मुल्क में पाकिस्तान में इंटरेस्ट रेट की डिटर्मिनेशन कौन करता है जी? स्टेट बैंक। स्टेट बैंक, ओके जी जी ऐसा ही है। Yes, sir. So, Aziz, may I know that what is Khyber basically? जैसे वो काइबर के थ्रू करते हैं ना, बेसिकली कराची इंटरबैंक ऑफर रेट के थ्रू स्टेट बैंक उसको रेगुलेट करता है काइबर के थ्रू। देख लें, थोड़ा सा ठीक कर लें, ये स्टेट बैंक इसको रेगुलेट, काइबर को वो नहीं करता। स्टेट बैंक आपको मॉनेटरी पॉलिसी में अपना रेट का एक बेंच रेट देता है और काइबर बेसिकली इज अ बॉडी दैट इज मेक मार्केट। और जो कराची और पाकिस्तान के जो बड़े बैंक्स है वो आपस में दोज हु आर रेडी टू प्रोवाइड लोन्स एंड दोज हु आर रेडी टू प्रोवाइड टेक लोन, वो मिलके फिर एक उनका इंटरेक्शंस होता है। और वो रेट जिस तरह ब्रिटेन में लाइबर है, हमारे यहाँ काइबर है। काइबर नेवर बी डिटर्मिन्ड बाय स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। आई एम जस्ट टॉकिंग बिकॉज यू पीपल आर डूइंग ACMA and professional people must know exactly about who is determining. This is one of the major
falsification is found in our society. लोग कहते हैं जी कि स्टेट बैंक हमें ऐसा नहीं करता। स्टेट बैंक आपको अपनी मॉनेटरी पॉलिसी में एक रेट मिनिमम दे देता है, और काइबर जो है, काइबर इज अ रेट विच इज नॉट डिटर्मिन्ड बाय द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, रादर इट इज बाय द इंटरबैंक ऑफर रेट। और व्हाट इज इंटरबैंक? वो काइबर जो रेट होता है वो उस स्टेट बैंक के मिनिमम रेट से तो हमेशा ज्यादा ही होता है ना। मिनिमम तो हमेशा स्टेट बैंक ही देता है ना, कि इससे मिनिमम नीचे नहीं होगा। लेकिन माय डियर, व्हाट वाज माय क्वेश्चन, हु डिटरमाइन द इंटरेस्ट रेट इन टर्म्स ऑफ प्राइवेट? वो जो आपका बैंक के अंदर एक्सेप्टेबल है वो बैंक वाला नहीं, वो तो एक मॉनेटरी का एक बेंच रेट उसने आपको दिया है। काइबर नेवर बी डिटरमाइन। अगर आप अपने लिटरेचर के अंदर कहेंगे ना कि काइबर इज डिटरमाइन बाय द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, तो आंसर इज रॉन्ग वन जेंटलमैन। अच्छा, ओके, नाउ दैट इंटरेस्ट रेट के हवाले से इन्फ्लेशन, ये दो चीजें बड़ी अहम हैं, और यू नो प्लस ये ट्रेड डेफिसिट जिसको बैलेंस ऑफ पेमेंट के हवाले के, अब इसमें भी थोड़ा सा वैसे फर्क है। एक आपका बीओपी होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट, एक वो आपका होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑन करंट अकाउंट, एक ट्रेड डेफिसिट है। ये टेक्निकली देखा जाए तो इनके अंदर भी स्लाइड डिफरेंसेस हैं, और ये मैं इस वजह से रेफरेंस देना चाह रहा हूँ कि प्लीज एज ए स्टूडेंट ऑफ द लाइक इकोनॉमिक्स, एज ए स्टूडेंट ऑफ पर्टिकुलरली दी जो आप फाइनेंस वगैरह के अंदर जो चीज़ें देखते हैं, तो ज़रा अपनी अंडरस्टैंडिंग को कंसेप्चुलाइजेशन में इसको वो करेंगे। अच्छा, मे आई आस्क यू कि ये जो हमारा इंटरेस्ट रेट जो होता है, इसमें हम कंपाउंडेड इंटरेस्ट रेट क्या होता है? तो पिछला प्लस होता रहेगा जी, ऐड होता रहेगा पीछे हर साल सर एडिशन होता रहेगा, मतलब प्रिंसिपल कंपाउंड होता रहेगा, इंटरेस्ट चले प्रिंसिपल यानी इंटरेस्ट ऐड जी, होकर, हाँ नहीं, फिर मतलब इस जब पर, आप हाँ। इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट जब लग जाता है तो वो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। कंपाउंडिंग का मतलब पता क्या होता है? जब कंपाउंडिंग कहते हैं तो इसका मतलब है कि हाउ मैनी टाइम द फ्रीक्वेंटली इंटरेस्ट इज एडेड ऑन इंटरेस्ट। अगर ये एनुअल कंपाउंडिंग है तो साल के बाद इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट लगेगा। अगर 6 मंथली कंपाउंडिंग है तो हर 6 महीने के बाद इंटरेस्ट के ऊपर है। अगर ये आई मीन क्वार्टरली है तो हर 3 महीने के बाद इंटरेस्ट। और इसी वजह से जो हमारा इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट में वेरी डिपेंडिंग अपॉन द कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसीज। आप मुझे बताइए कि अगर आप किसी जगह इन्वेस्टमेंट करने जाओगे तो आप कौन सी कंपाउंडिंग पसंद करोगे? सालाना? तो ज्यादा से ज्यादा नहीं, मतलब सालाना, मंथली से भी ज्यादा होगा। हाँ, मंथली से भी ज्यादा एक होता है कि वीकली हो, वीकली से भी ज्यादा डेली, और डेली से भी एक और ज्यादा है, उसे हम क्या नाम देते हैं जी? आवरली नहीं, उसका एक उसका नाम है, एक कंटिन्यूस कंपाउंडिंग उसे कहते हैं, इन्फिनिटी कंटिन्यूस कंपाउंडिंग। ठीक है, दैट्स व्हाई बेसिकली मेरा पर्पस ये है कि जस्ट to share you, because some information must be refresh in your mind, because the conceptualization of finance, of cost accounting, management accounting, that should also be very clear, because these may be interrelated with certain thing. Anyhow, I think, ladies and gentlemen, ये जो हमारे पास the environment है, the political legal segment जो है, this is also impacting. So that's why the one firm, the one company may have to analyze this segment represent how organization and governments mutually try to influence each other, and how firms try to understand these influences current and projected on their strategic actions. उस्मा बेटा, ये बताइएगा कि ये करंट एंड प्रोजेक्टेड ऑन देयर स्ट्रेटेजिक एक्शन से क्या मतलब है? Projected, current and projected. जी प्लीज। एक्सक्यूज मी, आवाज नहीं आ रही तो जो मैं जब लोगों से पूछता हूँ। अजीम, आप बताइए बेटा, प्रोजेक्टेड, करंट एंड प्रोजेक्टेड क्या होती हैं? प्रोजेक्टेड तो वो प्रोजेक्ट है, इसका मुझे आइडिया नहीं है। प्रोजेक्शन का पता है, ऐसी प्रोजेक्टेड तो फोरकास्ट होती है
बेसिस ऑन हिस्टोरिकल डाटा। आप पता है बहुत सारी चीजों को मिक्सअप कर जाते हैं माय डियर। सर मुझे इसका आइडिया नहीं है, बता दें दोबारा। सुन लें एक्चुअली जो करंट होता है, जो एक्चुअल डाटा की बेस के ऊपर आप कोई भी चीज बनाते हो तो वो आपकी करंट हिस्टोरिकल उसको कहते हैं माय डियर। प्रोजेक्टेड वो होती है जो एस्टिमेटेड होता है, जिसको आप फोरकास्टेड कह रहे हैं। मतलब आप एक सिंपल सी एक एग्जांपल बताना चाहता हूँ। मैं कहता हूँ जी कि अब हमारा फॉर एग्जांपल टाइम जो अगस्त तक हमारा टाइम गुजर गया, अगर मैं 2020 का अगर मैं कहूँ जी कि आपने बैलेंस शीट बनानी है 2020 की और अगस्त तक की, तो ये एक्चुअल बन सकती है चूंकि हमारे पास डाटा रिकॉर्डेड है। लेकिन अगर मैं कहूँ जी कि आप सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, फरवरी अगले 6 महीने की आप हमें वहां तक की बैलेंस शीट, तो वो तो आपके पास एक्चुअल डाटा नहीं है। उस सूरत में आप क्या करेंगे? प्रोजेक्शंस, प्रोजेक्टेड डाटा, वो जो एस्टिमेटेड डाटा की बेस के ऊपर कोई भी स्टेटमेंट बनाओगे वो प्रोजेक्टेड स्टेटमेंट्स होती हैं, उनको प्रोजेक्शंस कहते हैं। जिस तरह इनकम स्टेटमेंट आप लोग अगर बैंक से आपने लोन लेना है तो बैंक कहता है जी हमें 2019 का डाटा दें और अब तक का, और फिर अगले हमें 2 सालों की प्रोजेक्शन भी दें, तो आपको 2021, 2022 का डाटा भी, लेकिन वो तो एक्चुअल हो ही नहीं सकता। दैट्स वाई उसे फोरकास्टेड करते हैं। अजीम, क्लियर है ये बात? तो प्लीज कीप इन माइंड, जब भी कभी ये करंट एंड प्रोजेक्टेड ऑन देयर, तो प्रोजेक्टेड से यहाँ मतलब फोरकास्टेड है, एस्टिमेटेड है, बजटेड है। जो चीज बजटेड है, जो एक्चुअल ना हो, जिसको आप फोरकास्टेड करते हैं, वो स्टेटमेंट्स आपकी प्रोजेक्टेड स्टेटमेंट्स कहलाती है, उसको प्रोजेक्शंस कहा जाता है। जिस तरह T20 का मैच स्टार्ट हुआ, 10 ओवर हो गए, वो एक्चुअल है, लेकिन अगले 10 का हमें तो नहीं पता, तो फिर हम उसको एस्टिमेट करते हैं कि अगर ये बैट्समैन और ये चीजें ऐसे होती हैं तो देन हमारा स्कोर ये हो सकता है। वो जो आपने एस्टिमेटेड स्कोर आपने कैलकुलेट किया है उसको हम कहते हैं प्रोजेक्टेड डाटा। नाउ माय डियर, पॉलिटिकल और लीगल सेगमेंट में एंटी ट्रस्ट लॉज हैं, टैक्सेशन लॉज हैं, डीरेगुलेशन फिलोसफीज हैं, और लेबर ट्रेनिंग लॉज हैं, एजुकेशनल फिलोसफीज हैं, एंड सो ऑन। आई होप सो दिस इज लीगल की तो समझ आ रही है, पॉलिटिकल की कोई एग्जांपल देंगे, कंपनी को कैसे इन्फ्लुएंस करती है पॉलिटिकली? माय डियर, पॉलिटिकल का आप देखिए, हमारे यहाँ ये पॉलिटिकल है ना कि हमारे यहाँ सोशल सिस्टम, जो पॉलिटिकल सिस्टम्स हैं, पार्टीज, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन सिस्टम, ठीक है, उनके अंदर जो जो उनकी फिलोसफीज हैं, जो स्कीम्स हैं, जो काम करने का तरीका है, ये और उनमें कौन सी पार्टी अपोजिशन कितनी मजबूत है, उनमें तरीके का, ये आपके कौन से डिसीजंस हैं, ये पॉलिटिकल हैं। और किसी भी मुल्क में अगर पॉलिटिकल सिस्टम निज़ाम मजबूत है तो वो पॉजिटिव इम्पैक्ट करेगा, और अगर किसी मुल्क में पॉलिटिकल सिस्टम इनस्टेबल है, क्लियर नहीं है, तो दैट वुड हैव जस्ट लाइक एज पाकिस्तान के अंदर अभी आप देख लें कि मतलब पॉलिटिकल सिस्टम इतने साउंड नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन कह सकते हैं, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन स्टेबल है या नहीं? बेटा जी देखियो, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन की जब बात, मेरा कहने का मतलब है कि हाउ स्टेबल गवर्नमेंट्स आर देयर इन एनी इकोनॉमीज। मतलब आप जब पाकिस्तान का जी, मेरा कहने का मकसद ये था, मैं बीइंग इन्वेस्टर हूँ, एक कंपनी हूँ, मैंने इन्वेस्ट करना है, तो मैं देखूंगा यार ये स्टेबिलिटी कितनी ज्यादा है, तो मैं इन्वेस्ट करूंगा, अपनी एक स्ट्रेटेजी बनाऊंगा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को देखते हुए। इस लिहाज से मैं आपसे पूछना चाह रहा था। मैं वही बात बेटा जी कर रहा हूँ ना कि जी अगर आप अमेरिका में हैं तो वहाँ का पॉलिटिकल सिस्टम और है, अगर आप पाकिस्तान में तो और है, अगर आप इराक में तो और है। वो किस तरह असेस होगा पॉलिटिकल सिस्टम? मीन कि वहाँ स्टेबिलिटी इन गवर्नमेंट्स, इन देयर एक्शंस, इन देयर आई मीन वे, इन देयर पॉलिसीज, और स्टेबल वहाँ निज़ाम कितना है, उनकी ब्यूरोक्रेसी किस हद तक सपोर्टिव है, और वो किस हद तक वो काम कर रही है, ये आपके पॉलिटिकल सिस्टम्स होंगे। क्लियर? ठीक है सर जी। नेक्स्ट वन इज social cultural segment. The social cultural segment is concerned with the society attitudes and cultural value, because attitude and values form the cornerstone of the society. They often drive demographic, economic, the political, legal sort of things. तो किसी भी मुल्क का जो पॉलिटिकल, और आज जब हम ये बात करते हैं तो माय डियर, ये ना सिर्फ आपका नेशनल कल्चर, अब बल्कि इंटरनेशनल कल्चर की भी स्टडी आपकी बहुत ज़रूरी है कि जिस दुनिया के मुल्क में आप जा रहे हैं वहाँ का कल्चर कितना है,
और वो कल्चर हॉफस्टीड का एक मॉडल है कि उस सोसाइटी में डिस्टेंस ऑफ पार डिस्टेंस कितनी है, हाई है, लो है, इन्वायरमेंटल अनसर्टेनिटी हाई है, लो है, कलेक्टिविज्म, इंडिविजुअलिज्म, ये सब चीज़ें हैं, दुनिया में वेरी करती है। आई मीन मस्कुलिनिटी, फेमिनिटी, कुछ सोसाइटीज हैं जो फेमिनिटी कल्चर रखती हैं, कुछ सोसाइटीज हैं जो मस्कुलिनिटी कल्चर रखती हैं। बहरहाल किसी भी मुल्क में, जिस तरह अगर हम अपने मुल्क में अगर हम देखना चाहें तो हमारी वैल्यूज़, हमारी नॉर्म्स, बहरहाल सिंपल यू हैव टू डिफाइन द कल्चर। तो कल्चर इज बेसिकली values, norms, rituals, customs, beliefs, perceptions which are widely accepted and practiced in any society. That form, और उसका भी एक इम्पैक्ट है। अगर लोगों का कल्चर बहुत स्ट्रिक्ट है तो वहाँ आप मॉडर्निज्म लाना मुश्किल होती है। तो दिस इज व्हाट दैट यू हैव टू स्टडी द कल्चरल इम्पैक्ट एंड सर्टेन थिंग। अच्छा, अब देखिए जो सोशल कल्चर सेगमेंट में है, वी हैव टू सी women in the workforce, ये इसी तरह diversity attitudes about the quality of work life, shifts in work and career preferences one, and shifts in product and services preferences. तो ये society how much basically is accepting, और particularly diversity attitudes किसी society में कम है, इसका मतलब जहाँ कम है तो लोग different अंदाज में नहीं सोचते, तो वहाँ पे modernity और new चीज़ों को लाना मुश्किल होगा। इसीलिए अगर आप थोड़ा सा देखें तो फर्ज करें दुनिया में जैसे कबाइल हैं और कबाइल के अंदर एक डिफरेंट ब्रांड्स का आके पॉपुलर होना मुश्किल काम होता है। वजह क्या है कि लोग डाइवर्स ओपिनियन नहीं रखते और उनमें इतनी ज़्यादा रिजिडिटी होती है कि दे आर नॉट एक्सेप्टिंग सम सॉर्ट ऑफ। एनी हाउ आई थिंक दिस इज वन टाइप ऑफ आई मीन फैक्टर्स which ladies and gentlemen you have to see, and the external environment, general segment and element also involve the technological segment, and this is सर प्रीवियस ईयर एग्जांपल दोबारा दे दे। सोशल कल्चर कोई मतलब बीइंग कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू कह रहा हूं, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एक सोशल कल्चर बीइंग कंपनी किस तरीके से, इस तरह की एग्जांपल दे दे। नहीं, देखो मैंने ये बात कही है कि आप एक बिजनेस व्हेनेवर इज गोइंग टू स्टार्ट सम बिजनेस, तो वो देखेगा कि उस मुल्क के अंदर या वहाँ के में सोशल कल्चरल कितना है। अगर सोशल कल्चरल में डाइवर्सिटी पाई जाती है तो वहाँ डिफरेंट टाइप ऑफ इनोवेशन आप ला सकते हैं। अगर डाइवर्सिटी कम है, अब जैसे फ़र्ज़ करें, ये भी एक है ना जी कि फ़ीमेल जो है, जैसे कबाइल के अंदर आप जाएं, वो रिजिडली एक बुर्का पहनाते हैं और दे डोंट बिलीव कि हमारी बच्चियां ऑफिस में। अभी भी हमारे यहाँ नॉर्मली लोगों से पूछ के देखें तो वो कहते हैं जी कि हाँ, बच्ची को जी एजुकेशन में चले जाना चाहिए, यूनिवर्सिटी की एजुकेशन ठीक है, बट दे डोंट ट्राई टू बी मिक्स लाइक। तो हमारे एरियाज़ के अंदर तो ज़रा चीज़ें बेहतर हैं, बट आई थिंक वंस यू आर टॉकिंग कि जी आप मर्दान में बैठे हों या उससे आगे मालाकंड के अंदर बैठे हों और वहाँ बच्चियों को एजुकेशन, इस वजह से वो कहते हैं कि इन्होंने क्या करना है, तो घर में ही रहना है, तो दैट्स व्हाई। असल में बेसिकली वो बच्चियों का उसको इनकरेज ना करना और ऑफिस के अंदर उनको जॉब पे ना लेके जाना, उसके पीछे बेसिकली क्या है, ये सोशल और कल्चरल एस्पेक्ट्स हैं। ठीक है, ये जो अफगानिस्तान, तालिबान और ये वो सारी चीज़ें, तो दुनिया में जिस सोसाइटी के अंदर रिजिडिटीज पाई जाएंगी उनकी वैल्यूज और उस कल्चर के मुताबिक आप, क्योंकि कल्चर से बाहर निकलना बड़ा मुश्किल काम होता है। तो दैट्स व्हाट आई थिंक ये बात थी कि आपकी सोशल कल्चरल वैल्यूज किसी सोसाइटी में कैसी हैं और नेचुरली वो आपको इम्पैक्ट करती हैं। क्लियर अजीम? आगे चलें। अच्छा जी, अब टेक्नोलॉजिकल जो सेगमेंट है, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस अकर थ्रू न्यू प्रोडक्ट्स, प्रोसेसेस, मटेरियल। द टेक्नोलॉजिकल segment include the activities involved in creating new knowledge and translating that knowledge into new outcomes, products, processes, and material. Given the rapid pace of technological change and risk of disruption, it is vital for firms to study this segment. अच्छा, एक मैं आपको थोड़ी सी पहली बात तो ये बताना चाहूँगा just to expand your mind. हम नॉर्मली टेक्नोलॉजी से, चले मैं आप लोगों से ही, अजीम से ही पूछना चाहता हूँ। अजीम, टेक्नोलॉजी है क्या चीज? सर बेसिकली आर्ट है, हम अपने नॉलेज स्किल को अप्लाई करते हैं, उसको कन्वर्ट करते हैं अपने काम को ईज करने के लिए कि जल्दी से जल्दी बेहतर तरीके से हो जाए। जी, कोई मुझे अकाउंटिंग की टेक्नोलॉजीज बताएंगे क्या है?
अकाउंटिंग की सर जिस तरह रेशियो एनालिसिस इज अ टेक्नोलॉजी, ठीक है, अकाउंटिंग लिहाज से। बिल्कुल ठीक है, फाइन। मैं अगर आपसे पूछना पॉलिटिकल फाइनेंस में डेरिवेटिव सिक्योरिटीज क्या होती हैं? डेरिवेटिव सिक्योरिटीज फाइनेंस में जिसमें स्टॉक वगैरह है, ये स्टॉक बॉन्ड। नहीं नहीं, आई एम सॉरी जेंटलमैन, योर कॉन्सेप्ट इज नॉट क्लियर। ये तो कन्वेंशनल सिक्योरिटीज है माय डियर, डेरिवेटिव्स आर नॉट द सिक्योरिटीज लाइक शेयर्स, बॉन्ड्स। प्लीज फ्रॉम इस्लामाबाद, प्लीज एनीबॉडी वुड लाइक टू मेक इट क्लैरिफाई? सर वो सिक्योरिटीज जो दूसरी सिक्योरिटीज पे डिपेंड करती हैं, जिनकी वैल्यूज वगैरह, जैसे कि फ्यूचर कैश सेटल सिक्योरिटीज वगैरह हो गई, ऑप्शंस वगैरह। ऑप्शंस, एग्जैक्टली। आप कहाँ से बोल रहे हैं जेंटलमैन? सर इस्लामाबाद से। इस्लामाबाद से। योर गुड नेम प्लीज? सर असद। असद, असद व्हाट इज टॉकिंग इज राइट एक्चुअली। देखिए अजीम, गौर से सुनिएगा प्लीज। डेरिवेटिव्स का मतलब है कि जो द सिक्योरिटीज हुज वैल्यू इज डिराइव्ड फ्रॉम ऑन अदर अंडरलाइंग सिक्योरिटीज, लाइक ऑप्शंस। ऑप्शन में कॉल ऑप्शंस होती हैं, पुट ऑप्शंस होती है, पुट ऑप्शन, कॉल ऑप्शन सर, ये सर कॉल ऑप्शंस होती हैं, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, देयर इज अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट या कमोडिटी सर, जो पीएमएक्स जो है पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज जो करते हैं सर, उसकी वो सारी एग्जैक्टली। अच्छा, अब असल में पता क्या था कि बात में ये कहने की ये थी कि टेक्नोलॉजी को सिंपल मशीन ना, असल में टेक्नोलॉजी इज अ टूल, इज अ टेक्निक्स। हम अकाउंटिंग के अंदर, ऑडिट के अंदर, कैश मैनेजमेंट के अंदर टेक्नोलॉजीज आर बीइंग चेंज्ड, ठीक है, और नए रूल्स आ जाते हैं, नए तरीकेकार आ जाते हैं। अब आप देख लें, बैलेंस शीट आप बनाना चाहते हैं तो हॉरिजेंटल भी बन सकती है, वर्टिकल भी बन सकती है। एक जमाना था कि जिसके अंदर सिर्फ हॉरिजेंटल बनाते थे, ये इधर लाइन लगाओ और ऐसे करो, इधर एसेट कर लो, इधर ये कर लो। लेकिन अब क्या है, रिपोर्टिंग सिस्टम के मुताबिक आई थिंक यू कैन प्रिपेयर इन अ वर्टिकल मैनर। सेम इन द केस, आप इनकम स्टेटमेंट बनाना चाहते हैं तो इनकम स्टेटमेंट में भी जस्ट लाइक एज the horizontal one and vertical one, like. The point is this one, that technological segment involve a kind of, that is what ये ज़्यादा अहम चीज़ है, include the activities involved in creating new knowledge and translating that knowledge into new output and product, ये technology। और my dear, technological environment is being changed in any terms, in any like, so that is what product innovation, new communication technologies are being changed, application of knowledge is being changed, focus of private and government supported R&D और expenditures। तो हमारी बहरहाल जब टेक्नोलॉजी चेंज होंगी तो आई एम श्योर लाइक naturally this would have a very dire impact on our strategic actions. So naturally I think the companies do need to consider such sort of impact. Remember, हमने SM में, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में एक टर्म इस्तेमाल शुरू में भी की थी, चेंज और डाई। या अपने आप को बदलो या आप डाई होने के लिए तैयार हो जाओ, और चेंज का मतलब कंटिन्यूस चेंज है। सो दैट्स व्हाई आई थिंक इन अ सोसाइटी internationally, so I mean at a global level, whatever there are changes, so such sort of changes may need to be accepted, may need to be adapted by the firm. Otherwise because once technology is being changed, जिस तरह अभी हम मोबाइल के अंदर बात कर सकते हैं, तो जितनी फास्ट ट्रैकिंग इनोवेशंस होती हैं और उसका डिफ्यूजन होता है, और वो अपनी पुरानी और उससे पहले एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी को ऑब्सोलीट, यहाँ मैं लफ्ज़ ऑब्सोलीट इस्तेमाल ख़ास तौर पे इस्तेमाल करना चाहता हूँ, और ऑब्सोलेसेंस का ताल्लुक होता ही उसकी डिक्रीज इन वैल्यू ड्यू टू द एडवांसमेंट ऑफ द न्यू टेक्नोलॉजी की वजह से जो पुरानी टेक्नोलॉजी की जो वैल्यू में कमी आती है माय डियर, उसको ऑब्सोलीट कहते हैं। अच्छा, इसी से ये एक जो कॉन्सेप्ट है, अगर हम ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर भी करना चाहेंगे तो सेम इज द स्टोरी बेसिकली, क्योंकि हमें भी चाहिए कि विद द पैसेज ऑफ टाइम, बिकॉज द स्किल्स आर बीइंग चेंज, सो नेचुरली आई थिंक जो नई नई चीज़ें आ गई, अब हमें भी, अब देखो ना, एक टीचिंग, अब टीचिंग इज नो मोर जस्ट लाइक लेक्चरिंग, टीचिंग इज peer discussion, group discussion, role playing, role modeling is there, vestibular trainings are उसके जरिए से होती हैं, and there are many other
टेक्निक्स माइट बी यूज, लेकिन नॉर्मली हमारे यहाँ टीचर क्या करते हैं कि टीचर वही आके लेक्चर लेक्चर लेक्चर, और लेक्चर के अंदर भी वो आके डेफिनेशंस को बोर्ड पे लिख के बताने की कोशिश करते हैं, उसको अप्लाइड फॉर्म में नहीं लेके जाते। और टीचर्स अगेन टेक्नोलॉजीज आर नॉट यूज लाइक वाइज, आई मीन वो वन वे कम्युनिकेशन करते हैं क्लासेस में, बच्चों को बिठा के कहते हैं जी कि प्लीज डोंट ट्राई टू बी डिस्टर्ब माय क्लास। हालांकि मॉडर्न टेक्नोलॉजी ये कहती हैं कि देयर शुड बी अ नॉट अ वन वे कम्युनिकेशन, रादर इंटरैक्टिव आई मीन कनेक्शन इज देयर। दैट्स व्हाई लास्ट टाइम जब मेरी क्लास होने की, मैंने ऑफिस वालों से मिलके मैंने उनको कहा था, मैं जी मैं आई एम सॉरी, मैं वन वे कम्युनिकेशन पे इन लोगों को लेके जाना चाहता, आई विल बी ट्राई माय लेवल बेस्ट टू डिस्कस, चूंकि विद माय स्टूडेंट्स इंटरैक्टिव सेशन वुड बी देयर, तो स्टूडेंट्स शुड बी फील फ्री टू आस्क मी अ क्वेश्चन एनी टाइम ड्यूरिंग द लेक्चर्स लाइक। तो इसका मतलब है कि अब टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, अब वर्टिकल की बजाय हम सर्कुलर डिस्कशंस की सूरत में, तो एनी हाउ पॉइंट इज दिस वन, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस। So same in the case, a global segment में आज आजकल globalization है, just like as market and consumers are more global, this segment include relevant new global markets, existing markets that are changing, important international political events, and critical cultural and institutional characteristics of global market. तो global segment में important political events हैं, critical global markets, new industrialized countries, different cultural and institutional एट्रीब्यूट्स हैं। अब आप उसको नजरअंदाज नहीं कर सकते। मीन हम ग्लोबलाइजेशन के अंदर बैठे पाकिस्तान में, लेकिन हमें इम्पैक्ट दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक, दुनिया के मुख्तलिफ मार्केट्स कर रही हैं। हमें सी पैक, चाइना की गवर्नमेंट, अमेरिकन गवर्नमेंट का इम्पैक्ट वो हमें यहाँ पे लेके आ रहा है, और जो हमारी प्रोडक्ट बाहर जाती है वहाँ कई किस्म के कंपेटिटर उनके साथ मुकाबला करना पड़ता है। तो दैट्स व्हाई आई थिंक ग्लोबलाइजेशन इज देयर। और चूंकि हमारी फिजिकल बाउंड्रीज, जिसे हम आजकल बाउंड्रीलेस ऑर्गेनाइजेशन कह रहे हैं, वो खत्म होती जा रही हैं, वर्टिकली एंड हॉरिजेंटली, इंटरनली एंड एक्सटर्नली। आज टीम मैनेजमेंट का जमाना आ गया है। आज वो जो ब्यूरोक्रेटिक वे में बात करना, क्योंकि अगर ब्यूरोक्रेटिक वे में आप काम करोगे तो उससे आई थिंक यू मे नॉट बी एबल टू इम्प्रूव, उसकी बजाय कि देयर इज अ सीवियर कंपटीशन। और जब आप ब्यूरोक्रेटिक स्टाइल में काम करोगे तो आपकी डिसीजन मेकिंग स्लो होगी, जब डिसीजन मेकिंग स्लो होगी तो आपका कंपेटिटर आपसे आगे निकल जाएगा। तो दैट्स व्हाई आई थिंक यू मस्ट हैव टू मेक योर concrete changes in your structure. Anyhow, global impact that need to be seen. Same physical environment है भी किसी भी मुल्क का, वहाँ पे जो आज हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो जस्ट लाइक मैं इसको ये तो नहीं पढ़ता, लेकिन ये फिजिकल में एनर्जी कंजम्पशन, practices used to develop energy sources, renewable energy efforts, minimizing a firm's environmental footprint, availability of water as a resources, producing environmentally friendly products, reacting to natural and so these sort of things basically is। तो ये फिजिकल इन्वायरमेंट की एक एग्जांपल है, बहरहाल इसको आप लोग देख लीजिएगा। और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट एनालिसिस में we once are going to see, तो सर मुझे एक चीज पूछना है। जी जी, वेलकम वेलकम प्लीज। सर डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट में एथनिक मिक्स क्या होता है? बेटा अगर मैं पर्टिकुलरली आई वुड लाइक टू गिव ए पाकिस्तान, तो इसमें अगर मैं कहूँ जी कि कितने यहाँ पंजाबी हैं, कितने सिंधी हैं, कितने बलोची हैं, दिस इज एथनिक। मैं कहूँ जी इसमें कितने हिंदू हैं, कितने मुसलमान हैं, कितने ईसाई हैं, कितने सिख हैं, ठीक है। ये जो जात पात और जो ग्रुप्स होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सर्टन रिलीजन, आई मीन लाइक, और उनमें इलाकों के हवाले से, जैसे पर्टिकुलरली इंडिया के अंदर आपको देखा वो कहते हैं जी ये इतने % सिख हैं, ये हैं, ये हैं, ये हैं, ये हैं, ये एथनिक्स होते हैं। क्लियर क्लियर बेटा? यस सर, यस सर, थैंक यू। तो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में जब हम करते हैं तो इन्वायरमेंट आर मे बी ट्रबुलेंट, कॉम्प्लेक्स, ग्लोबल, अनसर्टन, एम्बिगुअस, इनकम्प्लीट, ठीक है। और बल्कि मैं थोड़ा सा आप नोट कीजिएगा, जब हम इन्वायरमेंटल अनसर्टेनिटी कहते हैं कि इन्वायरमेंट इज, आई मीन देयर इज अ वेरी अनसर्टन इन्वायरमेंट, तो अनसर्टेनिटी ऑफ इन्वायरमेंट किस तरह डिटर्मिन होती है? दो चीज़ों की बेसिस के ऊपर। एक होता है डिग्री ऑफ चेंज, डिग्री ऑफ वेरिएबिलिटी, और किसी मुल्क में उसके अंदर दूसरी चीज़ है कि उसका इन्वायरमेंट कितना कम्प्लेक्स होता है। तो कम्प्लेक्सिटी ऑफ डिग्री ऑफ कम्प्लेक्स इन्वायरमेंट और डिग्री ऑफ
वेरिएबिलिटी इन एनी इन्वायरमेंट मिलके वो आपको ये अनसर्टेनिटी प्रोड्यूस कर। अब डिग्री ऑफ जो चेंज है वो दो किस्म की होगी, दिस में बी हाई, दिस में बी लो। अगर डिग्री ऑफ चेंज इज वेरी हाई तो इन्वायरमेंट इज डायनामिक, अगर डिग्री ऑफ चेंज इज वेरी लो तो इन्वायरमेंट इज स्टेबल। इसी तरह अगर कॉम्प्लेक्स इन्वायरमेंट है तो कॉम्प्लेक्स इन्वायरमेंट में बी मोर कॉम्प्लेक्स, लेस कॉम्प्लेक्स, और अगर वो मोर कॉम्प्लेक्स है तो वो कॉम्प्लेक्स इन्वायरमेंट है, और अगर वो लेस कॉम्प्लेक्स है तो उसे हम सिंपल इन्वायरमेंट। लेकिन अब यहाँ फिर एक बात है कि हमारे स्टूडेंट को मोस्टली कॉम्प्लेक्सिटी का नहीं पता चलता कि कॉम्प्लेक्स हम किसको कहते हैं। Azim, again, I would like to offer you to ask you, what does it mean by complex environment? सर जो एम्बिगुअस हो, मतलब यूँ समझिए कि उस हम कोई भी पॉलिसी नहीं बना सकते उसके लिए, डिफिकल्ट सा इन्वायरमेंट, मतलब मैं आपको किस सेंस में बताऊं सर, मतलब उसके लिए पॉलिसी नहीं रख सकते। अजीम, इसीलिए तो मैंने आपको कहा है कि मैंने आपको जरा टफ टाइम देने की कोशिश की है कि चूंकि आप फील करोगे। सर बहुत कॉम्प्लेक्स का शिकार हो गया हूं। लेकिन इंशाल्लाह मैं आपकी जो कम्प्लेक्स है मैं अभी निकालता हूं, कोई मसला नहीं है जी। अ पर्सन फ्रॉम इस्लामाबाद, प्लीज, I would like to invite gentlemen, please just to tell what is complex environment and how environment of any company become complex. सर जिसमें ज़्यादातर वेरिएबिलिटीज़ हों उसे हम कम्प्लेक्स कहेंगे, और मुख्तलिफ चीज़ें जो बहुत ज़्यादा कंपनी की स्ट्रेटजी पे अफेक्ट कर रही हैं तो उसे हम कहेंगे वेरिएबल्स वगैरह जो हो गए। नहीं, देखिए तो मेरी बात, आपका गुड नेम क्या है? असद सर। असद, देखिए बात सुनिए, देखो मैंने कहा कि इन्वायरमेंटल अनसर्टेनिटी असेस होती है दो चीज़ों की बेसिस के ऊपर। एक होती है आपकी डिग्री ऑफ चेंज और दूसरी होती है डिग्री ऑफ कम्प्लेक्सिटी। डिग्री ऑफ चेंज को हमने दो वेरिएबल में डाला, हाई लो। अगर आपकी डिग्री ऑफ वेरिएबिलिटी बहुत ज़्यादा है उसको कम्प्लेक्स नहीं कहते, उसको कहते हैं डायनामिक इन्वायरमेंट। और जहां डिग्री ऑफ वेरिएबिलिटी लो होगी उसको हम स्टेबल इन्वायरमेंट कहते हैं। क्लियर? अच्छा, सवाल तो वापस आ गया ना, कम्प्लेक्सिटी। तो कम्प्लेक्सिटी को कैसे डिफाइन करें? हम कहते हैं बड़ा कॉम्प्लेक्स इन्वायरमेंट है सर जहाँ रिसोर्सेज कॉमन हो, कंपटीशन बहुत ज्यादा हो। You are very simple, innocent person, Mr. Azim. You are innocent gentleman. Thank you, sir. मैं अभी आता हूँ, बताता हूँ मैं। If I just would like to take a view from Karachi, from Islamabad, from Lahore, then मुल्तान का व्यू आएगा। इस तरह का इन्वायरमेंट को बहुत से फैक्टर्स अगर फेस करने पड़े तो उसे कहेंगे आप कॉम्प्लेक्स एनवायरनमेंट। आपका नाम क्या है जेंटलमैन? सर उसामा गुलजार। उसामा, यू आर फ्रॉम? सर लाहौर। लाहौर। ये तमाम पार्टिसिपेंट सुन लें जो उसामा ने बात कही है ये कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में। किसी भी जगह पे जितने फैक्टर्स, जितने कंडीशन, जितने वेरिएबल ज्यादा आपको सामना करना पड़ेगा वो इन्वायरमेंट उतना ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। अब मैं उसकी एक एग्जांपल बताना चाहता हूँ। लेट्स से एक कंपनी है, उसमें वर्टिकल एक सिस्टम है कि इंफॉर्मेशन ऊपर से सिर्फ नीचे आती है, तो वो रिलेटिवली कम्युनिकेशन कौन सी है? वर्टिकल। और वो भी क्या है? टॉप डाउन है। अगर वर्टिकल है लेकिन बॉटम अप भी है तो अब इसका मतलब आप कहेंगे जी वहां वर्टिकल टॉप डाउन होती है और बॉटम अप भी होती है। अच्छा, अब अगर एक कंपनी के अंदर 3 लोग हैं, एक बॉस है, 2 आई मीन सबॉर्डिनेट है। अच्छा, मुझे बताइए कि जो वर्टिकली कम्युनिकेशन टॉप डाउन बॉटम अप, लेकिन उसके साथ साथ जो 2 इक्वल लेवल के लोगों के दरमियान आपस में कम्युनिकेशन होगी वो कौन सी कम्युनिकेशन है? वो है हॉरिजेंटल। माय डियर, अब आपकी कंपनी के अंदर कम्युनिकेशन दोनों आ गई, वर्टिकल भी आ गई, हॉरिजेंटल भी आ गई। और अगर उसमें डायगोनल कम्युनिकेशन भी आ जाए तो जैसे जैसे कम्युनिकेशन के पैटर्न उसमें ज्यादा आते गए, अब आपकी कम्युनिकेशन सिंपल हुई या ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गई? कॉम्प्लेक्स। तो थैंक यू। इसकी डेफिनेशन लिख लीजिएगा कि हाउ मेनी कंपोनेंट आर इन्वॉल्व इन एनी सिचुएशन। मोर एंड मोर फैक्टर्स, more and more condition, more and more level, more and more layers,
either vertically, either horizontal, contribute either high complexity or less complex. Mr. Azim, जी सर, थैंक यू। आपकी वो जो आप कॉम्प्लेक्स हुए थे इजी हो गए ना जी? आप जरा उसका एक एग्जांपल सुन लीजिएगा। मिस्टर अजीम, आपने जी सर। आपने एफएससी कहाँ से की थी? सर सिविल लाइंस कॉलेज लाहौर। सिविल लाइन सिविल कॉलेज। लाइंस कॉलेज लाहौर। अच्छा अच्छा, मुझे बताइए कि सिविल लाइन कॉलेज लाहौर के स्ट्रक्चर का मुकाबला मैं पंजाब यूनिवर्सिटी से करवाऊं तो किसका इन्वायरमेंट ज्यादा कॉम्प्लेक्स है? ऑब्वियसली सर यूनिवर्सिटी का। और उसकी वजह क्या है? कि वहाँ डिपार्टमेंट ज्यादा हैं, वहाँ लेवल ज्यादा हैं, वो इधर वर्टिकल होंगे या हॉरिजेंटल। तो माय डियर, ये सिंपल सी एग्जांपल आप अपने माइंड में रखिएगा। तो जिस चीज के अंदर लेयर जितनी ज्यादा होंगी, कंपोनेंट जितने ज्यादा होंगे, एलिमेंट जितने ज्यादा होंगे, वो नंबर ऑफ एलिमेंट किसी चीज को कॉम्प्लेक्स या लेस कॉम्प्लेक्स करती है। आप जब मोटरसाइकिल का मुकाबला साइकिल से करेंगे ना, तो साइकिल इज अ बिट मोर सिंपल एज कंपेयर टू साइकिल, वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। वजह क्या है? उसमें कंपोनेंट ज्यादा है। तो इसका मतलब हम जनरलाइज करने जा रहे हैं कि जिस चीज में जितनी लेयर ज्यादा हैं, मैंने आपको एक थ्योरी बताई, उस थ्योरी के 10 स्टेप्स हैं। एक थ्योरी है उसमें सिर्फ 4 स्टेप्स हैं। कौन सी ज्यादा कॉम्प्लेक्स होगी? जिसमें ज्यादा स्टेप्स हैं। तो क्लियर हुई जी बात? प्लीज। जी सर। तो उसामा के लिए क्लैप कर दें। उसामा ने बड़े बिल्कुल ठीक बताया था जी। हम सब उसामा के लिए क्लैप कर रहे हैं जी। उसामा, आवाज आ रही है? जी सर। चलें, थैंक यू। आगे चलिए प्लीज। तो दिस इज व्हाट दैट वी आर सपोज टू कंसिडरेट लाइक नाउ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एनालिसिस में माय डियर, एनालाइजिंग द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इज अ डिफिकल्ट येट significant activity. So we have to scanning, monitoring, forecasting, assessing the environment or external environment analysis में हम क्या करते हैं? Identifying opportunities and threats is an important object of studying the general environment, and we do need to find opportunity. Opportunity क्या है? Is a condition in general environment that if exploited effectively helps a company achieve strategic competitiveness. मतलब इससे कंपनी को बेनिफिट होगा, ये पॉजिटिव है। और लाइकवाइज इसी तरीके के साथ अगर आप थ्रेट की बात करेंगे तो थ्रेट इज ए कंडीशन इन जनरल एनवायरनमेंट दैट मे हिंडर अ कंपनीज एफर्ट टू अचीव स्ट्रेटेजिक कंपैरिजन। तो जो चीज आपको ब्लॉक करे, रिस्ट्रेन करे, रोकती है, वो माय डियर वुड बी कॉल्ड द थ्रेट्स। और जो आपके ऊपर पॉजिटिव इंपैक्ट डाले, वो आपकी अपॉर्चुनिटी। तो दैट्स व्हाई वी हैव टू असेस अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। प्लीज कीप इट माइंड, ये भी एक सब्जेक्टिव चीज है और आपने कि आपके देखने का अंदाज होता है जो आपको डिटरमिन करता है कि वो आप उसे अपॉर्चुनिटी कहते हो। देखें, जब आप किसी चीज को कहते हैं ना कि ये एक प्रॉब्लम है, तो वो आपकी नेगेटिव सोच है। अगर आप कहते हैं कि ये अपॉर्चुनिटी है, अब बहुत सारे हमारे यहाँ एजुकेशन के अंदर अगर बच्चों को आप प्रेजेंटेशन दी जाए तो वो कहते हैं मारे गए, ओ हो, वो उसे प्रॉब्लम ले रहे होते हैं। हालांकि उसी को आप अपॉर्चुनिटी भी समझ सकते हैं कि जनाब अगर हम इसको अवेल करेंगे तो वी कैन मोर ग्रूम इन आवर फ्यूचर, और हमारी लर्निंग एबिलिटीज बेहतर होंगी, हमारे कॉन्फिडेंस हम ग्रूम करेंगे, पर्सनैलिटी। तो डोंट टेक इट एज ए प्रॉब्लम, टेक इट एज एन अपॉर्चुनिटी। बहरहाल आपकी पॉजिटिव माइंडेडनेस उस चीज को अपॉर्चुनिटी भी कर सकती है या एनी हाउ लाइक। तो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट एनालिसिस में जैसा कि हमने अभी, तो स्कैनिंग हम करते हैं। स्कैनिंग क्या है? स्कैन द स्टडी all segment in the general environment through scanning firms identify early signal of potential changes in general environment and detect changes that are already underway. or anyhow हम इसमें फिर scan often reveal ambiguous, incomplete, unconnected data and information. Environmental scanning is challenging but critical important for firms, especially those competing in high volatile environment. So many firms are special software to reduce the trade-off between an important missed events and false alarm rates. Also the internet provides it. तो बहरहाल ये उसमें टेक्नोलॉजीज हैं जो हम इस्तेमाल करके जो हमारी एम्बिगुइटीज होती हैं हम उसको बेहतर करने की कोशिश करते हैं। और इसी तरीके से ये फिर हमारी मॉनिटरिंग में हम चीज़ आ जाएंगी, और ये फिर हमारी फोरकास्टिंग है। और अगला जो पॉइंट है हमारा असेसिंग, जो वो हम कहना चाहते हैं
तो एनी हाउ आई थिंक दिस इज व्हाट के हमारी इन्वायरमेंट। तो जनरल इन्वायरमेंट में अब तक की जितनी भी स्लाइड्स हमने बात की हैं माय डियर, ये दैट वाज द जनरल इन्वायरमेंट। और जो जनरल इन्वायरमेंट होता है वो सोसाइटियल इन्वायरमेंट होता है। और प्लीज़ कीप इन माइंड हमने 3 लेयर्स लगाने की कोशिश की है। फर्म के ऊपर कंपेटिटर, कंपेटिटर के ऊपर इंडस्ट्री, इंडस्ट्री के ऊपर क्या है आपका जनरल इन्वायरमेंट। तो अब तक हमने जो बात की है दैट वाज विद रिस्पेक्ट टू द जनरल इन्वायरमेंट। जी ठीक है जी बच्चों, सो फॉर आई थिंक ये जो हमने बातें की, कोई क्वेश्चन अभी तक? अच्छा जी, इंडस्ट्री इन्वायरमेंट, हम इंडस्ट्री को पहले डिफाइन कर चुके हैं। अ ग्रुप फॉर्म दैट प्रोड्यूसेस सिमिलर प्रोडक्ट्स आर ऑफर सिमिलर सर्विसेज दैट आर क्लोज सब्स्टिट्यूट्स आर कॉल्ड द इंडस्ट्री। और compared with the general environment, the industry environment has a more direct effect on the firm। ये आप लोगों को जरा ध्यान में रखनी है, क्योंकि जनरल इन्वायरमेंट does not directly impact industry, relatively more directly impacting to a one firm। ठीक है, और strategic competitiveness और ability to earn above average return डिपेंड करता है इंडस्ट्री के इन्वायरमेंट के ऊपर। सो इंडस्ट्री इन्वायरमेंट एनालिसिस स्ट्रेटेजिक ग्रुप। अच्छा अब देखिए मेरी बात सुनिए, कैन यू डिफरेंशिएट बिटवीन स्ट्रेटेजिक ग्रुप एंड इंडस्ट्री? सर स्ट्रेटेजी ग्रुप इस तरीके से हो सकता है जिसमें एप्टमा, ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल एसोसिएशन, कोई बेनिफिट लेना हो स्यूगैस या वापडा में टैक्स के हवाले से या कोई फंड, दिस इज कॉल्ड स्ट्रेटेजिक ग्रुप। और इंडस्ट्री है जिसमें सीमेंट इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल एक इंडस्ट्री है पूरी। You are gentleman, innocent and very simple man। तो स्ट्रेटजिक ग्रुप को आप इस तरह से ले सकते हैं जैसे कि एक इकोनॉमिक्स में कंसेप्ट था किंक्ड का, इसमें 2 फर्म्स आपस में मिलके स्ट्रेटजीज डेवलप करती हैं कि प्राइसेस के हवाले से। नहीं बेटा ये प्रेशर ग्रुप के नहीं अजीम, आई एम सॉरी, ये उस सेंस में नहीं है। चलिए एक मेरी बात सुनिए, कराची से इनपुट आना चाहिए प्लीज। हेलो जी जी प्लीज सर। बेटा जी। जी सर स्ट्रेटेजिक ग्रुप में ये होता है कि आपकी सारी मतलब डिफरेंट कंपनीज फार्म्स हैं वो इकट्ठी हो जाती हैं। लाइक कोई दो टाइप की इंडस्ट्री भी हो सकती है, जैसे सीमेंट है और एक टेक्सटाइल है। लेकिन जो दूसरा है हमारे पास जो दूसरी जो इंडस्ट्री है उसमें ये है कि हम सिमिलर प्रोडक्ट्स ले रहे होते हैं। लाइक जो सीमेंट इंडस्ट्री है जस्ट वो एक इंडस्ट्री है, और उसके अलावा सीमेंट इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, अगर इनका एक ग्रुप बना दिया जाए तो ये स्ट्रेटेजिक ग्रुप होगा। नहीं बेटा वो नहीं। एग्जांपल ऐसे हो सकती है, ये शुगर इंडस्ट्री ने भी कहा कि हम 70 रुपीस पे शुगर बेचेंगे सारे, तो दिस इज स्ट्रेटेजिक ग्रुप के उन्होंने म्यूचुअली डिसाइड कर लिया एक प्रोडक्ट के हवाले से। अच्छा आप सुनिए एक्चुअली हमने क्या डेफिनेशन इंडस्ट्री की थी, a number of sum of total firms producing similar homogeneous टाइप की जो प्रोडक्ट बनाती हैं उसको हमने इंडस्ट्री बात की। लेकिन माय डियर जो स्ट्रेटेजिक ग्रुप होते हैं इंडस्ट्री के अंदर कुछ खास कंपेटिटर जो आपस में compete करते हैं, चूंकि समटाइम आप पूरी इंडस्ट्री से compete नहीं कर रहे होते। आप प्लास्टिक की जब इंडस्ट्री करेंगे तो उसके अंदर तो उसमें पता चलता है 500 कंपनीज हैं, लेकिन जो प्लास्टिक का सामान आप बना रहे हैं उनका मुकाबला आपका उनमें से 20 कंपनीज के साथ है जिनको आप कंपीट कर रहे हो। तो इंडस्ट्री में तो प्लास्टिक इंडस्ट्री बन गई, लेकिन वो फॉर्म जिनके साथ आप कंपीट कर रहे हो, जिनकी स्ट्रेटजीज, जिनके जो सिमिलर स्ट्रेटेजिक डायमेंशन है, अभी मैं आता हूं यहाँ पे माय डियर, तो मुकाबला पूरी प्लास्टिक इंडस्ट्री से नहीं है आपका उस स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स जो प्लास्टिक की हैं और जिनके साथ आपका कंपटीशन है। अभी मेरा ख्याल है कि पेप्सी का मुकाबला कोक के साथ है और पेप्सी का मुकाबला गौरमे वालों के साथ इतना शायद नहीं है। और हो सकता है इसी तरह एक एजुकेशन के अंदर लम्स वाले जाके बिजी यूनिवर्सिटी के साथ तो उनका कोई मुकाबला नहीं है, लेकिन लम्स का मुकाबला आईबीए वालों के साथ हो सकता है। तो बात यह है कि एजुकेशन के अंदर तो सारे ही हैं, लेकिन तमाम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस आर नॉट कंपीटिंग विद ईच अदर।
LUMS is not competing with BZ University. One thing remember, but they are all in education. इसका मतलब है कि वो इंडस्ट्री के अंदर एक खास ग्रुप्स जिनकी इंटेंशन, स्ट्रैटेजीज, डायमेंशंस एक जैसी होती हैं और वो आपस में compete करते हैं, वो माय डियर उनको हम स्ट्रेटेजिक ग्रुप कहते हैं. लिहाजा कीप इन माइंड, स्ट्रेटेजिक ग्रुप इज अ नंबर ऑफ competitors within the industry. जिस तरह हम मार्केटिंग के अंदर एक नीश मार्केटिंग कहते हैं, स्मॉल सब यूनिट विद इन दिस सेगमेंट इज कॉल्ड नीश मार्केट. इसी तरह इंडस्ट्री के अंदर हमारे टोटल मार्केट प्लेयर जो हैं वो 80 हैं, लेकिन हमारा मुकाबला अगर 10 फर्म्स के साथ है जिनके साथ हम कंपीट कर रहे हैं, तो माय डियर वो हमारा स्ट्रेटेजिक ग्रुप होता है. सर ये स्ट्रेटेजिक अलायंस भी इसी में आएगा कि हम अगर माय डियर वो और चीज हो जाती है, इसमें अलायंस नहीं बना रहे माय डियर. मैंने कहा है प्लास्टिक इंडस्ट्री में आप 80 मार्केट प्लेयर से मुकाबला नहीं कर रहे, आपका मुकाबला उनमें से 10-12 फर्म्स के साथ है जिनको आप समझते हैं कि उनके एक्शंस हमें इम्पैक्ट कर रहे हैं और उनके साथ मुकाबला है. लिहाजा पूरी इंडस्ट्री के साथ आपका मुकाबला नहीं है. वो जिनके डिजाइन इंटेंशंस आपकी सिमिलर हैं और जिनके साथ आप कंपीट कर रहे हो, उसको आप नाम आप इंडस्ट्री का नहीं दोगे, उन लोगों को आप क्या नाम देते हो? स्ट्रेटेजिक ग्रुप. अब जरा पहले सुनिए, स्ट्रेटेजिक ग्रुप क्या है? अ सेट ऑफ फर्म्स एम्फसाइजिंग सिमिलर स्ट्रेटेजिक डायमेंशंस एंड यूजिंग सिमिलर स्ट्रेटजीज. तो मुझे बताइए कि उस 80 प्लास्टिक फर्म्स की सारी स्ट्रेटजीज एक जैसी तो नहीं होंगी. उनमें से 4, 5, 8, 10 कंपनीज हैं जिनकी स्ट्रेटजीज आपके साथ मिलती हैं, लिहाजा आपका मुकाबला उनके साथ हो गया ना जी. दूसरी, द कंपटीशन विद इन अ स्ट्रेटेजिक ग्रुप इज ग्रेटर देन द कंपटीशन बिटवीन स्ट्रेटेजिक ग्रुप. तीसरा, there is a more heterogeneity in the performance of firms within strategic group, similar market position, similar products, ठीक है जी. So और similar strategic actions. देखा उनमें क्या है कि आपकी मार्केट पोजीशन एक जैसी है उनके, और जिनके साथ एक जैसी है मुकाबला ज्यादा है. सिमिलर प्रोडक्ट्स हैं, उनकी नेचर एक जैसी है, आपने भी बेचना उन्होंने भी बेचना, मुकाबला उनके साथ ज्यादा हो गया. सिमिलर स्ट्रेटेजिक एक्शंस हैं, आपके एक्शन उनके एक्शन. लिहाजा इंडस्ट्री के अंदर एक खास ग्रुप जिनकी प्रोडक्ट, जिनकी डायमेंशन, जिनकी स्ट्रेटजीज, जिनके एक्शन, जिनकी मार्केट पोजीशन में सिमिलरिटी पाई जाती हैं, ठीक है, उनमें हम उनको क्या नाम देते हैं? हम लाइक वी टॉक द स्ट्रेटेजिक ग्रुप. अच्छा, अब मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा, प्लीज डियर स्टूडेंट्स, मुझे बताइए कि इंडस्ट्री में मुकाबला ज्यादा होता है या स्ट्रेटेजिक ग्रुप में आपका कंपटीशन ज्यादा होगा? स्ट्रेटेजिक ग्रुप. थैंक यू. अब इस चीज को जरा देखिएगा, ये इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रुप कंपटीशन मोर इंटेंस देन और इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रुप कंपटीशन. तो देखा आपके पास इंडस्ट्री के से ज्यादा इंडस्ट्री जो स्ट्रेटेजिक ग्रुप के अंदर आपका डायरेक्ट इम्पैक्ट ज्यादा होता है. So that's what I think this is very valuable concept. So please keep in mind, if someone asks you कि ऐसी इंडस्ट्री एनालिसिस और स्ट्रेटेजिक ग्रुप क्या होता है, तो ग्रुप इंडस्ट्री के अंदर पाया जाएगा. ग्रुप के अंदर इंडस्ट्री नहीं होती. इंडस्ट्री इज अ ब्रॉडर कॉन्सेप्ट, और इंडस्ट्री के अंदर जो मोर इंटेंस कंपेटिटर आपस में जिनकी प्रोडक्ट, मार्केट पोजीशन, स्ट्रेटेजिक एक्शन एक जैसे होते हैं और जो अपने आप को राइवल समझते हैं, वो स्ट्रेटेजिक ग्रुप कॉल करेंगे जी, कहलाएंगे. क्लियर हुई बात जी? प्लीज, कॉन्सेप्ट क्लियर है जी? जी सर. थैंक यू, यू आर वेरी नाइस पीपल. तो ये है जी कंपेटिटर एनालिसिस कंपोनेंट में आई मीन फ्यूचर ऑब्जेक्टिव्स हैं, करंट स्ट्रेटजीज होती हैं, अजम्पशंस हैं और कैपेबिलिटीज़ हैं, और फिर इसकी बेसिस के ऊपर आप रिस्पॉन्स वगैरह, तो इसको आप नेचुरली यू आर सपोज टू सी लाइकवाइज. और इसी तरीके के साथ माय डियर, दिस इज कंपेटिटर एनालिसिस में कम्प्लीमेंटर और कंपेटिटर की हमने बात करनी है. एनी हाउ, देखें दो कॉन्सेप्ट हैं. एक कम्प्लीमेंटर है, द नेटवर्क ऑफ कंपनीज दैट
sell complementary products or services are more compatible with the focal firm's own product or services. So complementers expands the set of competitors that firm must evaluate when completing a competitor analysis. तो जो हमारे complementer होते हैं वो if a complementer's product or services add value to the sale of the focal firm product or services, it is likely to create value for the focal firm. जबकि जो हमारे जो competitor हैं, if a competitor product or services is in a market into which the focal firm intend to expand, the complementer can present a formidable competitor. तो बहरहाल हमने देखना है फोकल फॉर्म क्या होती है? फोकल फॉर्म जो मेन फॉर्म है जिसके लिए आप कोई चीज बना रहे हो या कुछ कर रहे हो वो फोकल फॉर्म है. देखिए ना आप मुझे बताइए. सॉरी एग्जांपल से प्लीज क्लियर कर दें, मुझे क्लियर नहीं हुआ. भी देखो बात इस तरह है कि अगर बाटा की मैं मिसाल दूं, अगर बाटा की जो प्रोडक्ट्स हैं, बाटा जब शूज बनाएगा तो बाटा की इनपुट क्या है? लेदर. और लेदर वो मार्केट से सपोज खरीदते हैं और लेदर मार्केट से खरीदेंगे तो अगर लेदर बनाने वाली कंपनीज बाटा की बराह रास्त कंपेटिटर नहीं है तो वो क्या बन गए? कंप्लीमेंटर बन गए. कंप्लीमेंटर का मतलब है कि वो पार्टी जो आपकी प्रोडक्ट के अंदर वैल्यू ऐड कर रही है और वो आपके साथ compete नहीं कर रही. चूंकि जो कंपेटिटर्स होते हैं वो आपस में compete करते हैं, कंप्लीमेंटर compete नहीं करते. राइट सर. अच्छा, इस वक्त मेरा आपका मुकाबला, आप मेरे कंपेटिटर हैं या मैं कंप्लीमेंटर हूं आपका? आप हमारे इस वक्त जो है ना वो कंप्लीमेंट्री के साथ नेसेसिटी नहीं है. भाई वही चीज है ना, कंप्लीमेंटर का मतलब ही यही है कि मैं मेरे बगैर आप यू आर नॉट कैन परफॉर्म लाइक दैट, तो मैं कंप्लीमेंटर हूं. अच्छा, अब मुझे बताएं कि अगर मेरा भी इंस्टीट्यूशन हो, मेरा भी एक इदारा हो और मैं चाहता हूं कि मेरा इदारा के बच्चे वहां ज्यादा सक्सेसफुल रहें बजाय कि आप लोग, तो फिर मैं जो चीज प्रोवाइड कर रहा हूं वो आपका मैं कंप्लीमेंटर के तौर पे नहीं बल्कि आपको डील किस सेंस में कर रहा हूं? एज ए कंपेटिटर. तो माय डियर, जो कंपेटिटर का रोल अगर हो तो वो फिर ज्यादा फॉर्मिडेबल का मतलब है वो ज्यादा नुकसानदेह होगा. और अगर आपके जो इनपुट वैल्यू प्रोवाइड करने वाले कंप्लीमेंटर हो तो उससे फायदा आपको ज्यादा होता है. भाई ये मैम आपने पूछा था ना कि फोकल फर्म्स क्या है? फोकल फर्म्स Yes, sir. वो फर्म जिसके लिए आप कर रहे हैं, अगर आप उसके लिए कंप्लीमेंटर हैं तो फिर दिस इज नाइस थिंग, और अगर आप कंपेटिटर हैं तो दिस वुड बी नो मोर गुड थिंग. तो माय डियर, द टाइम दैट होल वी हैव डिवोटेड टिल दिस टाइम, दैट वाज recording to analyze the competitive environment and the environment which is in our surrounding. So I think we can discuss in a sense environment maybe competitor environment, environment might be just like industry. Industry के अंदर फिर हमने breakup करके क्या कहा है और वो that is the strategic group. और ये मैं concept आप लोगों से चाहूँगा कि जब someone asks you कि what is strategic group, where is more competition in industry or in strategic group, so the answer would be there is more competition, more severe competition would be In the group. in strategic. In group नहीं कहना, strategic group, because strategic group is Strategic. a more I mean a homogeneous type of market which are competing on basis of product, on the basis of same strategies, on the basis of same intentions, same distribution, और उस बेसिस के ऊपर आप लोग. तो अभी अगर आप देखें हमारी ये वाली स्लाइड कंपेटिटर एनालिसिस की थी, पीछे की तरफ जाएं इंडस्ट्री एनालिसिस. इंडस्ट्री के अंदर हमने क्या फाइंड करने की कोशिश की थी? स्ट्रेटेजिक ग्रुप, और फिर उसके ऊपर हमारा जनरल एनवायरनमेंट. तो माय डियर आप ऐसा करो, सर्कल लगाइए, एक डॉट आपकी सबसे दरमियान का सर्कल है वो आपकी फर्म है. फर्म के ऊपर क्या है? कंपेटिटर्स है. कंपेटिटर्स के ऊपर क्या है? इंडस्ट्री. इंडस्ट्री के अंदर क्या हो सकता है? स्ट्रेटेजिक ग्रुप, जिसके साथ आपका डायरेक्ट कंपटीशन हो सकता है. और फिर इसी तरीके के साथ स्ट्रेटेजी और इंडस्ट्री के ऊपर फिर आपका जनरल एनवायरनमेंट है. एंड नाउ दैट्स व्हाट आई थिंक यू नीड टू एनालाइज और फाइंडिंग योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, or like this is highly essential thing. So today
we have tried our level best, particularly to analyze the external environment, particularly, as well as I think about the internal in terms of like, तो ज़्यादातर बल्कि एक्सटर्नल को हमने टच किया विद रिस्पेक्ट टू अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। और दुनिया में हर वो चीज़ जो आपके बिजनेस को ब्लॉक करे, रोके, नेगेटिव इम्पैक्ट करे, वो हम थ्रेट्स कहते हैं। और जो चीज़ हमें उसमें बूस्ट अप करे, वैल्यूएट करे और आपको हेल्प आउट करे, आइडिया दी अपॉर्चुनिटी। तो हमें एज ए हमें एनालिसिस करना है, और इसीलिए हम सॉर्ट एनालिसिस करते हैं, जिसमें हम अपनी अपॉर्चुनिटीज को देखते हैं, व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज, व्हाट आर द थ्रेट्स, व्हाट आर द सॉर्ट स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। तो दिस वाज अबाउट। तो ये अब टाइम हमारा आज थोड़ा सा टाइम हमारा अर्ली ज़ाया हो गया था उसमें। तो माय डियर, हमारा अगला जो एरिया है वो हम डायमंड मॉडल, और ये डायमंड मॉडल वाज प्रेजेंटेड बाय माइकल ई पोर्टर। प्लीज कीप इन माइंड, माइकल ई पोर्टर की 4 चीजें बहुत अहम हैं। नंबर 1 ये डायमंड मॉडल, नंबर 2 the 5 forces of industry analysis, number 3 generic strategies of Michael E. Porter, और नंबर 4 एक वैल्यू चेन एनालिसिस है, वैल्यू चेन। ये 4 चीजों को ज़हन में रखना है आपको। डायमंड मॉडल, 5 forces of industry analysis, generic strategies, and the 4th one, value chain. So inshallah tomorrow we'll be going to discuss with you डायमंड मॉडल, और इससे रेस्ट ऑफ अगली जो अभी हैं ये चीज़ों को देखिएगा आप लोग। ये हमने इसी का ये सारी चीज़ें की हैं, और ये यहाँ तक जो है ये हमारा जो चीज़ है। अच्छा, इसको हमने ये जो कंपैरेटिव एनालिसिस है माय डियर, इसको मज़ीद अभी मैंने थोड़ा सा क्योंकि फिर हम ये एनालिसिस हैं, शॉर्ट एनालिसिस, इसको तो माइकल पोर्टर की 5 ये अभी तो मुख्तलिफ जो टेक्निक्स इसमें इस्तेमाल करेंगे। तो बहरहाल अभी कल हम डायमंड मार्केट्स मॉडल से लेके हमने ये चीज़ करना है, और या बल्कि पहले ही हम ये स्ट्रेटेजिक ग्रुप एनालिसिस वगैरह करके फिर हम डायमंड, बहरहाल इन स्लाइड्स को अभी हम कल मजीद करेंगे जी। ठीक है जी। नाउ प्लीज दिस इज टाइम इफ यू लाइक टू आस्क एनी क्वेश्चन, इफ सम क्लैरिफिकेशन इज रिक्वायर्ड तो प्लीज जी प्लीज, दोज हु आर रेजिंग। मेरा क्वेश्चन है जी वेलकम वेलकम मिस्टर अजीम। सर ये हमने अभी जनरल एनवायरनमेंट की बात की, फिर इंडस्ट्री, फिर कंपेटिटर्स, इसका मतलब ये सारे जो है हमारे कंट्रोल में नहीं है, मतलब हर टाइम असेस करेंगे ना हम कि इसकी स्कैनिंग करते रहेंगे क्योंकि हमारे कंट्रोल में नहीं है। इस हवाले से मैं थोड़ा बता। बेटा जी बड़ी सिंपल है, कंपनी के अंदर जो कुछ है वो आपके कंट्रोल में है, कंपनी से बाहर वो आपके कंट्रोल में नहीं है, बड़ी सिंपल सी बात है। वो तो ठीक है, लेकिन ये है कि अगर बाहर स्टेबिलिटी नहीं है तो आपने कहा था कि उसको डायनामिक इन्वायरमेंट है, तो हम जिसमें हमने पीछे स्ट्रेटजीज की बात की, तो हम हर टाइम असेस करेंगे और उसको अपना गोल अचीव करने के लिए, स्ट्रेटजी को अपना फुलफिल करने के लिए हम इमरजेंस कुछ चीजें लेकर आएंगे, अनफोर्सिबल सर्कमस्टांसेस। तो इस लिहाज से असेसिंग इज अ डिफिकल्ट पार्ट कि हर टाइम असेस नहीं कर सकते, फिर टेक्निकलिटीज भी चाहिए, और इन्वायरमेंट इतनी तेजी से चेंज हो रहा है, उस असेसिस उस स्ट्रेटजी को कॉप अप विद इन्वायरमेंट कैसे करेंगे, तो ये असेसिंग इज अ डिफिकल्ट पार्ट। इस लिहाज से मैं थोड़ा जी पहली बात ये है, मैं थोड़ा सा चीज़ों को आप पहली तो बात है ये करने की कोशिश करें कि कंट्रोलेबल इन्वायरमेंट क्या होता है और नॉन कंट्रोलेबल। एक तो ये देख लें, कंपनी के अंदर जो इन्वायरमेंट है वो आपका कंट्रोलेबल है, मसलन आप बंदे कम करने तो कर लो, आपने अपनी टेक्नोलॉजी नहीं लेके आनी तो ले लो, लेकिन पेंडेमिक आया तो आप उसको कंट्रोल तो नहीं कर सकते ना, वो तो बाहर से आया है। अच्छा, गवर्नमेंट प्राइस रेज करती है पेट्रोल के, और उसके ऊपर अगले दिन हमें वो पेट्रोल महंगा मिलता है, लेकिन हम नहीं कंट्रोल कर सकते क्योंकि ये डिसीजन गवर्नमेंट के पास है। तो बहरहाल आपके जो एक्सटर्नल में जो फैक्टर्स जो आपकी अथॉरिटी से बाहर हैं वो अनकंट्रोल है, बड़ी सिंपल है, और वो जो कंपनी के अंदर वो कंट्रोलेबल है। अच्छा, अब जो आपका सवाल है ना जी असेसिंग की बात है, तो माय डियर बात यह है कि वो एक्सटर्नल हो या इंटरनल हो, आपको असेस करना है, और असेस करोगे तो उसकी वैल्यू का पता चलता है। आप गोल्ड है ना, मैं आपको कहता हूँ ये सोना है जी, आप मुझे सिर्फ उसको सिर्फ देख के आप मुझे पैसे नहीं दोगे, आप असेस करोगे
कि उसमें कितने कैरेट्स का है जी, तो पहले असेसिंग होती है। इसी तरह आप कोई भी चीज है उसकी असेसमेंट करोगे कि व्हाट इज द लाइकलीहुड, उसमें क्या है और उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। तो वो आपका जो सवाल है ये थोड़ा सा डिफरेंट सेंस में है। एक तो पहले आप सवाल करो जी कंट्रोलेबल और अनकंट्रोलेबल क्या होता है। असेसमेंट डिफरेंट है। अब असेसमेंट आप कह रहे हो जी मुश्किल है, जाहिर बात है मुश्किल है, और दुनिया में क्या होना है क्या होने जाएगा जिसमें जितनी अनसर्टेनिटी होती है वो मुश्किल होनी है। बहरहाल मुश्किल हो या कैसे भी हो, तो माय डियर, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के अंदर जब आपने चीज़ों को ब्रॉडर बेस करना है तो कंपनी को उसके ऊपर पैसा खर्च करना पड़ेगा, उसके ऊपर स्किल्ड लोगों को लाना पड़ेगा जो उन फ्यूचर फोरकास्ट को कर सकने की सलाहियत रखते हों, जिनकी फाइनेंस, जिनकी इकोनॉमिक्स और इकोनॉमिस्ट हों, जो चीज़ों को इंटरप्रेट कर सकते हों, देख सकते हों। तो बहरहाल आप एक स्ट्रेटेजिक डिसीजन करने जा रहे हैं तो उसकी असेसमेंट भी आपको करनी पड़ेगी। ये सवाल, एक असेसमेंट डिफरेंट है, लेकिन कंट्रोल और अनकंट्रोलेबल सिंपल सी बात है कि अमेरिकन गवर्नमेंट ने जो फैसला करना है वो जाहिर बात है वो उन्होंने करना है, हमने तो नहीं करना है। वो जो भी अनाउंस कर देंगे हमें उसके मुताबिक अडेप्ट करना पड़ेगा बस, क्योंकि हमारा उनके ऊपर कंट्रोल नहीं है। और जो इन्वायरमेंट के ऊपर कंट्रोल नहीं है लेकिन उसका इम्पैक्ट हमारे ऊपर आना है, हम उसके मुताबिक अपने आप को एडजस्ट करोगे, और एडजस्टमेंट मीन अडेप्टेबिलिटी की लेके आनी। सर इसका मतलब ये हो कि हम तो स्टेबल स्ट्रेटेजी नहीं बना सकते फिर, क्योंकि वो तो डायनामिक एनवायरनमेंट तो चेंज हो रहा है। हाँ जी डियर, ऐसा ही है आजकल, इसीलिए कंटिन्यूस प्रोसेस है। आप एक स्ट्रेटजी बना के उसको प्लान को दराज में नहीं रख देते कि ये स्ट्रेटजी 5 साल के लिए बन गई। स्ट्रेटजी इज सपोज टू बी रिव्यूड विद द पैसेज ऑफ टाइम। क्लियर? ठीक है सर, थैंक यू। थैंक यू जी। डियर स्टूडेंट्स, आई होप सो कि अभी स्टिल नॉइज लेवल मेरा ख्याल है इट इज़ नॉट अप टू माय एक्सपेक्टेशन। तो नॉइजेस बढ़ाइए, शोर वैसे नहीं करना, सवालात करें, क्रिएटिव क्वेश्चन करें, और आपका टीचर इंशाल्लाह आपके सामने हर क्वेश्चन को रिप्लाई करने के लिए तैयार रहेगा। थैंक यू फॉर असाइनिंग एंड गिविंग नाइस टाइम। कल मुलाकात रहेगी जी। ओके, थैंक यू। इंशाल्लाह। खुदा हाफिज। खुदा